Okay, class. Today we are going to start with the mineral nutrition in plants, okay, which is the last topic from this chapter. We have completed almost every topic from this chapter. Only two topics are left: mineral nutrition and the fate of glucose. Okay. So first we started with the mineral nutrition. Mineral nutrition in plants. Actually, there are so many minerals which are required for the healthy growth and development of the plant body, but few are very essential and crucial in the health and growth of the plant. ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एक तो बेसिक एलिमेंट्स. ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स which makes different types of nutrients, and these elements which are very much important in the life of the plant are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Okay, wait a minute. Okay, so basic elements, that is carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Okay, so these are the basic elements from which basically the different nutrients and different food materials are being synthesized. Especially number one is the glucose, okay, which contains carbon, hydrogen, and oxygen. Number two, amino acids, that is which contains carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. And another one is the fats. Okay, which contains carbon, hydrogen, and oxygen. So what's the difference between the carbon, hydrogen, and oxygen of the glucose and carbon, hydrogen, and oxygen of the fats? Actually, there's a little bit difference between the fats, carbon, hydrogen, and oxygen, and the glucose, carbon, hydrogen, and oxygen, and it's the difference between the ratio of or the number of oxygen atoms. If the number of oxygen atoms is decreased, oxygen atom, number of oxygen atom decrease, then the carbon, hydrogen, and oxygen composition will make the fats. And if it increase, the number of oxygen atom, then it will form the glucose. Understand or not? समझ आया? जी टीचर. Okay. Fats, carbon, hydrogen, and oxygen. Okay, class. So in this way, the basic elements plays an important role in making different types of nutrients. Apart from this, the mineral nutrients are concerned. Essentials are number one, magnesium. Number two, sodium. Number three, chlorides. I'm also putting the charge on the elements. There is specific charges. Okay. अच्छा, क्लोरीन होता है, फिर इसके अलावा फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फेट्स,
and another one is nitrates, NO2, and NO3, nitrates and nitrites. These are the important elements, mineral nutrients, which are the basic requirement for the essential growths of the plant. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं आयरन, Fe. ठीक है. As far as the magnesium is concerned, magnesium is necessary for chlorophyll synthesis. Iron is also necessary. Iron is also necessary for chlorophyll synthesis. ठीक है. Iron और magnesium. Sodium is very much necessary in maintaining the concentration of essential salts, that is sodium chloride, and balancing of sodium potassium pump, inside the cell. Phosphorus is necessary for support plus strength of plant. Phosphates are necessary for providing energy by combining with adenosine ATP formation. ठीक है. Nitrates and nitrites for better growth. Is it clear to you? Is it clear to you, beta? Yes. Okay. अच्छा भाई, मिनरल न्यूट्रिशन तो एक ये हो गया. ठीक है. इसके अलावा सॉइल लेस कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट, ये एक और चीज है जो हम इसी के साथ पढ़ सकते हैं मिनरल न्यूट्रिशन में. Have you ever seen the soil-less cultivation of different types of crops and plants? That means no soil, and there is a cultivation of tomatoes or peaches, plums. Soil-less cultivation of plants. In other words, cultivation in nutrient water. अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं. Either you provide the solution in the form of a nutrient broth. Solution in the form of nutrient broth. ठीक है. न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, इसके सॉल्ट्स होंगे, इन सब के सॉल्ट्स होंगे. ठीक है. फिर इसके अलावा NO2, NO3 के सॉल्ट्स होंगे. ठीक है. सॉल्ट्स की फॉर्म में होंगे सब. और अपार्ट फ्रॉम दिस अप टू सर्टेन एक्सटेंट ट्रेसेस के अंदर जो है आप आयरन देंगे. ठीक है. ये सारे जो होंगे ये किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? ऑल ऑफ देम वर डिसॉल्व्ड इन वाटर.
dissolve in water. Okay, ये सारे वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे एंड हाउ दे आर प्रोवाइडेड टू द प्लांट. Actually, what the cultivators do, they make the small canal-like system or tube or pipe-like system in which after a certain distance there is an extension given on which a plant is being planted. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पाइप जो है वो इन्होंने जनरेट किया ऐसे करके, ठीक है, और इसमें किसी भी सोर्स के जरिए जो है पंप के जरिए न्यूट्रिएंट जो है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो है वो इसके अंदर रन करवाएंगे. बट उसका भी टाइम होता है और लिमिट होती है. दैट मीन्स कि हर वक्त जो है ना मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो ब्रॉथ होता है वो रन नहीं करवाया जाता, बिकॉज इसकी वजह से फिर क्या होगा, ज्यादा अगर दे देंगे तो क्या होगा, प्लांट जो होगा वो विल्टिंग की तरफ भी जा सकता है. प्लांट जो है वो जिसे कहते हैं कि डेड भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स में बहुत फर्क आ सकता है. फर्स्ट करो टोमेटो प्लांट्स हैं तो वो टोमेटो प्लांट्स को इस तरीके से उनकी जो स्टेम्स हैं और अंदर जो रूट्स हैं उसको डिप कर दिया जाएगा. ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लगा दिया एक और टोमेटो प्लांट. जैसे टोमेटो प्लांट ऐसा होता नहीं है, बड़ा ब्यूटीफुल सा होता है तो मैंने ऐसे ही बना दिया. ठीक है, ऐसे करके और फिर उसके बाद जो है इसकी जो रूट्स होती हैं वो इसके अंदर मौजूद होती है. अच्छा, इसके ऊपर सीआई में एक सवाल आया था कि हाउ कैन वी मैनेज दिस और इसके बेनिफिट्स क्या हैं. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट कल्टीवेशन, सॉइललेस कल्टीवेशन? हाँ बेटा, इसके कोई बेनिफिट्स बता सकते हैं मुझे? लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, है ना, लेस लैंड इज रिक्वायर्ड, स्मॉल एरिया पे लार्ज कल्टीवेशन हो सकती है. ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हैं. अच्छा, एक तो ये वाला मेथड है कल्टीवेशन इन न्यूट्रिएंट वाटर. ठीक है, अच्छा दूसरा जो मेथड है सोल्यूशन कैन बी स्प्रिंकल. अब देखो इसी को मैं मॉडिफाई कर दूंगी. सोल्यूशन कैन बी स्प्रिंकल और प्रोवाइडेड ऑन द कॉटन और वूल. न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है provided on cotton wool where plants are grown. अच्छा, आप लोगों को प्राइमरी क्लासेस के अंदर टीचर जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड जो करवाती होंगी उसमें वो प्लास्टिक कप्स के अंदर कॉटन जो होती है वो रखवा के और उसमें पानी डाल के और उस कॉटन के अंदर सीड्स को रख देते थे और फिर उसके बाद उसमें से जो है ना स्प्राउट होता था प्लांट ना. तो ये एक पुराना मेथड है और काफी जिसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है. ठीक है, तो इस पाइप के बजाय जो है ये पाइप वाला जो मेथड है ये थोड़ा एडवांस है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कॉटन होती है वो सॉइल की जगह किस चीज से रिप्लेस की जाती है, सॉइल को कॉटन से रिप्लेस किया जाता है. ठीक है, और इस कॉटन के अंदर आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड दैट्स हाउ द कल्टीवेशन टेक्स प्लेस. इसका भी यही है, वही सारे फवायद हैं, वही सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मिनरल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग जो हमने की थी कल्टीवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर, उसके जो फवायद होते हैं सेम वही सेम बेनिफिट्स हैं. ओके, now we are going to start the rate of glucose. Rate of glucose, ग्लूकोज की किस्मत. ट्रांसलेट ये कहलाएगी ग्लूकोज की किस्मत.
Okay. The glucose is synthesized by the process of photosynthesis. Carbon dioxide plus water, it will give in the presence of sunlight or chlorophyll, glucose. Now, if that glucose is combined with NO2 or NO3 or simply नाइट्रोजन, ठीक है, अगर ये इसके साथ कंबाइन कर जाता है इनमें से तीन किसी कंपोनेंट के साथ, देन इट विल फॉर्म दी प्रोटीन. कैसे? मैंने बताया था ना अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सब इसके साथ होते हैं, ठीक है. सो दे विल फॉर्म दी प्रोटीन. Proteins, ठीक है. And these proteins are stored in number 1 seeds, stems, underground roots, ठीक है. इन सब के अंदर ये प्रोटीन्स जो होते हैं जाके स्टोर हो जाते हैं. एक्चुअली फेट ऑफ ग्लूकोज इज नथिंग बट द स्टोरेज. अच्छा, इफ दिस ग्लूकोज molecule is combined with another so many glucose molecules, it will form the starch. Okay, it will form the starch. Okay, and it is stored in chloroplast. It will be stored in stem. It will store in fruits, vegetables, and other storage area. You name it. Plant के तकरीबन सारे parts के अंदर जहाँ जहाँ storage हो सकती है वहाँ starch जो होता है वो store हो जाता है. If this glucose is combined with more oxygen molecules are combined with this glucose molecule, they will form the fats, and this fat is stored in seeds and up to certain extent roots. ज्यादातर सीड के अंदर स्टोर होते हैं. That's why सीड से ऑयल निकाला जाता है. ओके, अच्छा, तो प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, फैट्स हो गया, एंड ग्लूकोज टू ग्लूकोज, दैट मीन्स के स्टार्च हो गया. अच्छा, सुक्रोज, इफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइंस it will form the non-reducing sugar, sucrose. Two molecules ग्लूकोज, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल अगर कंबाइन करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक स्टोर मटेरियल डाइसैक्राइड फॉर्म करेंगे, दैट इज द सुक्रोज. और सक्रोज, ठीक है. और ये जो है ये कहाँ पे स्टोर होंगे? फ्रूट्स में. सिट्रस फ्रूट्स हो गए या पल्पी फ्रूट्स हो गए, इन सब के अंदर सिंपल सुक्रोज जो होती है वो स्टोर होती है. So that's how the fate of a glucose takes place. As far as glucose is there, it provides energy by breaking down into carbon dioxide plus water, plus it gives out ATP.
lots and lots of energy. ये basically glucose का काम होता है. Okay. So by this we have completed this chapter, and how much time is left? Can anybody tell me? So we will start the past papers. Yes, Emil. I'm not. Okay. ओके बेटा, अब देखिए ये जो है ना हमारे पास पेपर्स हैं, ठीक है. So the first one is in a photosynthesis experiment, a plant is left in bright sunlight for several hours. Okay. Yes. Yes. In a photosynthesis experiment, a plant is left in a bright sunlight for several hours. A leaf is then removed from the plant and tested for starch using iodine solution. The diagram shows the leaf from the plant that was used in the experiment. ये leaf कैसा नजर आ रहा है तुम लोगों को? It's a variegated leaf. That means the central part is the white, that is non-chlorophyll containing area where chlorophyll is absent, and green area is the outer part. Okay. Which diagram shows the result of the experiment? C. C. Okay. सही है. अच्छा, next one is the which substance needed for protein synthesis is carried into a leaf from the stem? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा वाला सब्सटेंस जरूरी होता है जो कि लीफ के अंदर लाना है? नाइट्रेट. यस, नाइट्रेट. अब्दुल रहमान से तुम ही बोलोगे और कोई नहीं बोलेगा? हैं? Nobody is going to participate. टीचर एमल है ना आपकी स्टार स्टूडेंट, ये करेगी. ए स्टार स्टूडेंट एमल सुन रही हो तुम? देखा जी, कितना मैं सुन जबरदस्त, रही हूँ। कितना जबरदस्त इंप्रेशन है, कितना प्यारा इंप्रेशन है तुम्हारा. हाँ. अच्छा, और लाइबा तुम? You're not going to participate? Okay. Which two substances are the product of photosynthesis? Carbon dioxide product की बात होती है. Carbon dioxide and glucose, carbon dioxide and water, oxygen and carbon dioxide, oxygen and glucose. Yes. अब्दुल रहमान तुम नहीं बोलोगे, अब लड़कियों को बोलने दो. Yes. बताओ भाई सही ऑप्शन कौन सा है? प्रोडक्ट. दैट मींस एंड प्रोडक्ट क्या होगी फोटोसिंथेसिस की? डी. बी. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है ना. दोबारा देखो. डी. यस, ऑक्सीजन. डी. D for doll. Okay. Okay, now the next one. 4 test tubes are set up as shown in the diagram and left in full sunlight. After several hours, which test tube contains the most dissolved oxygen? Yes, the most dissolved oxygen. सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके अंदर होगी? देखो, जो फर्स्ट है उसके अंदर पॉन्ड वीड है, इसमें स्नेल है. ठीक है. सेकंड वाले में पॉन्ड वीड है, यानी सिर्फ प्लांट है, वाटर है. तीसरे में पॉन्ड वीड है और साथ में स्नेल भी है, और चौथे में सिर्फ वाटर है. अच्छा, बी जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करो अब्दुल रहमान, बी कैसे करेक्ट आंसर है? टीचर्स देखें. हाँ, क्या टीचर्स देखें, सनलाइट है हाँ, तो फोटोसिंथेसिस होगा. फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होगा. तो सी इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ, सी इसलिए नहीं है क्योंकि स्नेल वो ऑक्सीजन यूज कर लेगा. हाँ, उसकी कंसंट्रेशन गिर जाएगी. होगी तो सही, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी. ठीक है, चलो. अच्छा, फिर उसके बाद है प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन सप्लाईज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस? रॉ मटेरियल
कार्बोहाइड्रेट सप्लाईज, ठीक है, दैट मीन्स ओन कार्बोहाइड्रेट सप्लाईज का मतलब है फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए? रॉ मटेरियल यानी कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट दैट मीन्स के वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं कहूंगी, बाय प्रोडक्ट। यस, ठीक है, मुझे पता है, मैं बताऊं या? एक मिनट, गर्ल्स से पूछने दो। यस गर्ल्स, बताइए। अच्छा अब्दुल तुम बताओ। बी। डी, बी। बी, ओके सही है, क्योंकि जो है ना रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं होती? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद यूज्ड अप प्रोडक्ट होती है। हाँ, अगर रेस्पिरेशन की बात की जाती तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अच्छा, अ प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स has the starch removed from the leaves by placing it in a dark cupboard for 48 hours, ठीक है। Black pepper is then fixed on one leaf as shown in the and the plant is exposed to the light. After 24 hours, which part of the leaf contains starch? Starch टेस्ट जब करके देखेंगे तो कौन सा वाले पार्ट पे जो है स्टार्च के वजह से आयोडीन टेस्ट जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। यस, बताइए। सिर्फ डी पार्ट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है क्लोरोफिल और ये एक्सपोज्ड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने पट्टी रख दी है या पेपर का जो पीस रख दिया है, उसकी वजह से ये जो क्लोरोफिल है इसके ऊपर सनलाइट अप्रोच नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगा, तो स्टार्च नहीं बनेगा। वेरीगेटेड लीफ में तो खैर एरिया जो ये व्हाइट एरिया है यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहीं से भी जो है ना स्टार्च बन जाए, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट जो क्लोरोफिल की है वो तो है ही नहीं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल की और एक्सपोज्ड एरिया जो डी पार्ट का है, वहीं पे सनलाइट जो है वो एक्ट करेगी और फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बनाएगी। तो जब हम आयोडीन टेस्ट उसके ऊपर करेंगे तो आयोडीन का ब्राउन कलर जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, ये भी उसी तरीके का सवाल टीचर है। आंसर उसका क्या था, ऊपर करें? डी था ना? यस, डी, ठीक है। अच्छा, a plant with stripped leaves similar to the one below was kept in a bright light for 6 hours, ठीक है। white strip है और green strip है, ठीक है। अच्छा, the leaf was taken from the plant and the chlorophyll is removed, ठीक है। it was then tested for the starch using the iodine solution which diagram shows the result for the test। अब iodine solution जो है उसके ऊपर जब हम pour करेंगे तो starch test जो positive आएगा वो green strip वाले एरिया में आएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा वाला है? ए, बी, सी और डी? ए। ए, ए होना चाहिए टीचर। ए वाकई में? जी। लड़कियों बताओ ये सही कह रहे हैं अब्दुर्रहमान? लड़कियां खामोश क्यों हैं? यस, आई एम आस्किंग फ्रॉम द गर्ल।